start our math chapter, geometry. इस chapter में you are finding a first term which is tangram. Tangram is nothing. It's just the cuttings of different shapes. है ना, आपने different shapes cut करके कोई shape बना रखी है. डिफरेंट शेप्स कट करके जैसे आपने हेलीकॉप्टर की शेप बना रखी है या आपने कैंगरू की शेप बना रखी है, तो इन्हीं को टैनग्राम्स कहते हैं. ये जो डिफरेंट कटिंग्स हैं इनको टैन्स कहते हैं. एंड व्हेन दे आर पुट टुगेदर टू फॉर्म द शेप्स दे आर कॉल्ड टैनग्राम्स, है ना. सो इट्स जस्ट अ फन एक्टिविटी, बट ये टर्म आपको मालूम होनी चाहिए कि टैनग्राम क्या होता है. तो you can see कि tans, there are different tans means different shapes, cuttings of different shapes. When we join these shapes together, there is some specific shape we call that shape tangram. Okay, तो एक fun activity है, nothing else. Now, coming to the next concept of this geometrical chapter, first term is point. The point, you can see point is nothing, it's just a dot. हम dot को point कहते हैं. The main thing is it has no dimensions. You can see it has no length, no width. So it has no dimensions, and it is always represented by a capital letter. It can be any capital letter, A, B, C, or P, Q, R. Any capital letter it can be, but it must be a capital letter. Means we always use a capital letter to represent a point. Now coming to the line. Okay, first line is the collection of number of points. Means endless number of points are joined, and then a straight path is there. We call it a line. तो ये definition आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि straight path जो बनता है by joining the endless sets of point, okay, in a single plane, it is called a line. Okay, it has a length, no width, no height. ठीक है, लाइन की लेंथ होती है बट कोई विड्थ और हाइट नहीं होती. द रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट लाइक दिस डबल headed arrow. This double headed arrow means you can extend this line in both directions, towards right and towards left both, है ना. दोनों तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. लिमिटलेसली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. डेफिनेटली इसका कोई एंड नहीं है तो हम इसको स्केल से मेजर नहीं कर सकते. So to represent a line, you can see this is the symbol of line, AB, है ना. We represent it with the capital letter, and above this AB, we make a double-headed arrow. Now coming to the next term, which is a ray, and all these three terms are very important. Line, ray, and line segment. इनका difference भी exam में आ सकता है. Okay, so now coming to the ray. ray किस तरह से होती है कि एक तरफ से there is the end point at one side, there is the end point, and on other side there is a arrow. Arrow means you can extend it from that side. ओके, जहाँ पे एरो है आप उसको उस साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं. मीन्स इसका एक साइड तो स्टॉप है. ओके, वन साइडेड is stop means the particular point is there, one end point is there. You can see here only one end point. Okay, so you can use these points in differentiating also line, ray, and line segment. Okay, line has no end point, ray has one end point, but दूसरी तरफ से you can extend it indefinitely, limitlessly. Okay, so representation of ray is like this. This can be the another difference between line and ray. Okay, now coming to the next term, which is a line segment. So in line segment, wait. In line segment, you can see that there are two endpoints. Okay, line segment में two endpoints होते हैं. Oh, wait. Okay, means it has a particular length. You can measure it with the help of a scale or a ruler. Okay, representation is just like this, AB, and above there is a line with two endpoints like this. Okay, so for the difference which I told you is it can be a question in any exam. That in line segment, in line there are endpoint, in ray there is one endpoint, and in line segment there are two endpoints. So two endpoints है तो you it has a fixed length and you can measure it. Okay, and the second difference can be their representation, कि हम उसको कैसे represent करते हैं. तो ये दो difference जो है आप exam में use कर सकते हैं. Now coming to the types of lines. Types of line, horizontal means जो sleeping line होती है हम उसे horizontal line कहते हैं. It runs from left to right. ठीक है, अगर sleeping है
तो डेफिनेटली लेफ्ट टू राइट ही इसकी डायरेक्शन बनेगी। बट वर्टिकल लाइन इज अ स्टैंडिंग लाइन, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम रहेगी। एंड स्लांटिंग लाइंस, ठीक है, स्लांटिंग लाइन में एक स्लोप होता है, ठीक है, डायगोनल टाइप जो लाइंस होती है वो स्लांटिंग लाइंस होती है। ओके, एंड यू कैन सी कि जो स्ट्रेट लाइन जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट। सपोज अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, ओके, तो इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी वो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर ये 2 पॉइंट्स है, अगेन दिस स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप इस तरह का कोई भी पाथ लेते हैं तो वो इसके कंपैरिजन में अगर हम मेजर करेंगे तो बड़ा आएगा, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन होती है वही शॉर्टेस्ट पाथ को डिफाइन करती है, और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। Okay, next is the curved line, which is not straight. Okay, a line which is not straight is a curved line. Now, coming to the topic of measuring a line segment, हम लाइन मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रही है। हम रे को भी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरफ से एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ से लिमिटलेसली और इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें रे का, सो इट कैन बी अ लाइट रे, ठीक है। एक सोर्स होता है लाइट रे का, जैसे हम सन ही ले लेते हैं, ठीक है, वो उसका एंड पॉइंट है, बट दूसरी तरफ जितना उसको पाथ मिलता है वो एक्सटेंड होती चली जाती है। तो यू कैन नोट इट कि लाइट रे इज एन एग्जाम्पल ऑफ और इज अ काइंड ऑफ रे, ठीक है, जिसका एक एंड पॉइंट है जो कि उसका सोर्स पॉइंट है जहां से वो लाइट ओरिजिनेट हो रही है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। और उसका जो पाथ होता है, वो जो लाइट रे है उस पाथ में कहीं तक भी ट्रेवल करेगी जहां तक उसको पाथ मिलेगा इन एनी डायरेक्शन। तो वन डायरेक्शन में जो है वो पाथ को फॉलो करती है। तो ये एक रे का एग्जाम्पल हो सकता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, लाइट रे। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, अगर हम मेजर करने की बात करें तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग कि हम लाइन को मेजर नहीं कर सकते, हम रे को भी मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। वी कैन ओनली मेजर द लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ जब भी हमने किसी भी लाइन को मेजर करना है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जीरो होना चाहिए। ओके, जीरो के बाद मतलब आपने जो वन एंड पॉइंट है वो जीरो पे टच कर रखा है, और वो जो सेकेंड एंड पॉइंट है वो जिस भी डिजिट तक या जिस भी नंबर तक जाता है वो लेंथ जो है अ, हमारी उस लाइन सेगमेंट की होती है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि वो 4 तक जा रहा है, तो हमारी लाइन सेगमेंट की लेंथ 4, और इसकी यूनिट हम सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि स्केल पे जो मार्किंग्स होती है वो सेंटीमीटर की होती है। ओके, और अगर इसको ड्रॉ करने के लिए कहते हैं तो ड्रॉ करने में भी आपने सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, ये स्टेप्स भी आपको पता होने चाहिए दैट यू हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे इसको जीरो पे, आप उसने उसको ए मार्क किया, यू कैन टेक एनी कैपिटल लेटर PQRST एनी। और सपोज आपको 3 सेंटीमीटर बोलिए तो आपका जो सेकेंड एंड पॉइंट है वो 3 नंबर पे होगा, और आपने उसको बी मार्क करके एक स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ए से बी का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जीरो मार्किंग ए पे रहेगी और फिर आपने देखना है कि बी मार्किंग किस डिजिट तक जा रही है। सिमिलरली PQ, और ड्रॉ करने के लिए भी यू हैव टू टेक द सेम स्टेप्स कि 0 से लेके 6 तक आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मीन्स आपका वन एंड पॉइंट जीरो होगा और सेकेंड एंड पॉइंट 6 होगा। क्रिटिकल थिंकिंग का ये क्वेश्चन देखिए, कितनी लाइन सेगमेंट्स, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, अब वो 2 पॉइंट्स उन्होंने फिक्स कर दिए, अगर इस 2 पॉइंट से मुझे एक स्ट्रेट लाइन पास करनी है, मीन्स एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट से जाए। ओके, और वो लाइन सेगमेंट है तो डेफिनेटली इट हैज टू एंड पॉइंट। तो ऐसी सिर्फ ओनली वन वन लाइन ऐसी होगी जो उन दोनों पॉइंट से जाएगी। होपफुली इस पॉइंट तक आपको क्लियर होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अवर exercise 1. Okay, let us do this exercise fast. How many endpoint does a line segment have? तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके, लाइन में 0 होते हैं, रे में 1 एंड पॉइंट होता है, एंड लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इधर हमें लाइन सेगमेंट काउंट करनी है, तो 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक जाने वाली जितनी भी लाइंस हैं आपने उनको काउंट करना है। सो 1 2 3 4
5 6 7, it is 8 and one more 9. ओके, 1C। ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है। अरे हैज टू एंड पॉइंट, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो अरे हैज टू एंड पॉइंट ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रे की सिर्फ वन एंड पॉइंट होता है। ओके, तो हम इसको फॉल्स कंसीडर करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज अ लाइन हैज इनडेफिनिट लेंथ। इनडेफिनिट लेंथ लाइन की होती है? यस, होती है। लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है। इनडेफिनिट मीन्स जो फिक्स नहीं है, दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हुई? ओनली सेकंड। तो हम ओनली सेकंड पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, इसमें आपने रे, लाइन सेगमेंट और लाइन बतानी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे ए पार्ट में दोनों तरफ एरो है, सो इट इज अ लाइन। बी पार्ट में दोनों तरफ एंड पॉइंट है, तो इट इज अ लाइन सेगमेंट। सी पार्ट में एक तरफ एंड पॉइंट है और एक तरफ से एरो है, इसका मतलब है ये रे है। ओके, सी पार्ट इज अ रे। ओके, नेक्स्ट आपने ये ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट एक्स वाई। देखिए, इसमें आपको कोई डायमेंशंस तो है मेंशन की नहीं हुई है। तो आप कितनी भी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट मीन्स टू एंड पॉइंट्स शो करते हुए एंड एक्स वाई उसकी लेबलिंग करते हुए लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपका ए पार्ट हो जाएगा। रे में आप एक एंड पॉइंट दिखाएंगे और दूसरी तरफ से एरो हेड दिखाएंगे और लेबलिंग पी क्यू करेंगे, क्योंकि रे पी क्यू में मेंशन की हुई है। एंड लाइन एम, लाइन आपको पता है दोनों तरफ से एक्सटेंड होती है। इसमें एक ही हमें लेटर दिया है एम, तो वो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3 जो है कंप्लीट, सॉरी एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीगन्स। ओके, तो पॉलीगन मीन्स होता है मैनी। ठीक है, तो मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर्स को, मैनी साइडेड मीन्स वो साइड कितनी भी हो सकती है। ठीक है, पोली मीन्स मैनी होता है। पोली मीन्स मैनी। पोली का मतलब होता है मैनी। मैनी मीन्स मोर देन वन, मैनी हो गया। तो एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है, क्लोज्ड फिगर देखो, पॉलीगन से क्लोज्ड फिगर है, तो एक क्लोज्ड फिगर के लिए एटलीस्ट वी नीड थ्री स्ट्रेट लाइंस, थ्री लाइंस होनी चाहिए। टू लाइन से भी स्ट्रेट क्लोज्ड फिगर नहीं बनती, तो एटलीस्ट थ्री लाइंस हमें चाहिए, स्ट्रेट लाइंस, टू मेक अ क्लोज्ड फिगर। ओके, तो इन्हीं क्लोज्ड फिगर्स को पॉलीगन्स कहा जाता है। अगर नंबर ऑफ साइड्स उसमें थ्री है तो पॉलीगन का नेम ट्राइएंगल होता है। उस पॉलीगन को ट्राइंगल कहा जाता है, जो कि थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रा मीन्स फोर होता है। फाइव साइडेड क्लोज फिगर को पेंटागन कहा जाता है। पेंटा मीन्स फाइव। एंड सिक्स साइडेड क्लोज फिगर को हेक्सागन कहा जाता है। ओके, तो ये डेफिनेशन होती है पॉलीगन की। एनी क्लोज्ड फिगर, ओके, एंड एटलीस्ट थ्री स्ट्रेट लाइंस मस्ट बी देयर। थ्री स्ट्रेट लाइंस होंगे तभी कोई क्लोज फिगर बन सकती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइड्स, इन पॉलीगन्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं। थ्री साइडेड द ट्राइंगल, okay, four sided closed figure is a quadrilateral, five sided is pentagon, and six sided is hexagon. Now come to the critical thinking question: is it possible to make a polygon with only two line segments? So no, because polygons are the closed figures, and to make any closed figure we need at least three lines. तो आप इसका ये justification इस तरह से दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिस टाइम, इसमें आपने पॉलीगन्स देखने हैं। देखो, स्ट्रेट लाइंस के पॉलीगन्स होते हैं, तो जो भी क्लोज्ड फिगर्स हैं और स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है उनको आप पॉलीगन्स कहेंगे। बट अगर उनमें कर्व लाइंस है तो आप उनको पॉलीगन्स नहीं कहेंगे। आप देख रहे हैं इसमें सारी ही क्लोज्ड फिगर्स है, बट जिनमें कर्व लाइंस आ रही हैं आप उनको क्रॉस करेंगे, और जिनमें स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं आप उनको टिक करेंगे, वो हमारे पॉलीगन्स कहलाएगा। Okay, all those figures which have the straight lines are the only polygons. Curved figures are not the polygons. तो एट्थ वाला भी हमारा पॉलीगन है, एंड नाइन्थ वाला भी पॉलीगन है, टेंथ पॉलीगन नहीं है, 11th इज ऑल्सो अ पॉलीगन, 12th इज नॉट अ पॉलीगन। तो ये ध्यान रखना कि पॉलीगन्स में जितनी भी लाइंस होंगी वो सब स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड कर्व नहीं होनी चाहिए, एंड क्लोज फिगर्स होनी चाहिए। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में देखिए,
ट्राइंगल है, ट्राई मीन्स थ्री, तो थ्री साइडेड क्लोज फिगर को ट्राइंगल कहा जाता है। एंड जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टिसेस होता है। देयर इज नथिंग एल्स, ये आपको पता होना चाहिए कितनी वर्टेक्स है ट्राइंगल्स में, तो थ्री वर्टेक्स और थ्री वर्टिसेस यू कैन से, एंड थ्री साइड्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल में अगर हम आते हैं तो फोर साइडेड क्लोज फिगर आती है। ये देखिए, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसे ट्रेपीजियम बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो अ फोर साइडेड क्लोज फिगर, इसको आप डायमंड शेप बोल सकते हैं। दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, ऑल दीज आर दी फोर साइडेड फिगर्स बिकॉज क्वाड्रा मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड। तो फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, जिसमें हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, ट्रेपीजियम, इस तरह की फिगर्स आती हैं। तो इसमें भी साइड्स एंड वर्टिसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती हुई लाइंस होती हैं उन्हें डायगोनल्स कहा जाता है, जैसे डीबी। ओके, अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को डायगोनल्स कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो डायगोनल्स हैं, देयर आर टू डायगोनल्स एंड देयर आर फोर साइड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आप देखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको पता है ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर नॉट इक्वल। एंड वन मोर थिंग कि डायगोनल्स, जो डायगोनल्स मैंने आपको बताया अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को डायगोनल्स कहते हैं, ये डायगोनल्स भी इसमें इक्वल होती है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको रेक्टेंगल की पता होनी चाहिए। एंड कम टू द स्क्वायर, तो स्क्वायर में एक्चुअली फोर साइड है सेम, बट इसमें ऑल फोर साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। एंड एंगल्स 90 के बनते हैं, एंगल्स का टॉपिक हमारा आगे आएगा। बट आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ओके, ये 90 का एंगल बनाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स भी इनकी इक्वल होती है। तो स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होती है। रेक्टेंगल में ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड डायगोनल्स इक्वल। नाउ पेंटागन इज द फाइव साइडेड क्लोज फिगर, तो फाइव साइडेड है तो इसकी वर्टिसेस भी फाइव होंगी, बट इनकी डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगी। ओके, नाउ कमिंग टू द हेक्सागन, हेक्सागन सिक्स साइडेड क्लोज फिगर है, सिक्स वर्टिसेस। Now come to the practice time. A polygon with four sides is called pentagon. So definitely this one is false statement. फोर साइडेड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस, क्योंकि स्क्वायर में वो सारी प्रॉपर्टीज है जो रेक्टेंगल में होती है, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। दिस इज ट्रू, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो रेक्टेंगल में भी है। तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर में भी जस्टिफाई होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो स्क्वायर में जस्टिफाई हो रही है। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, वो भी स्क्वायर में जस्टिफाई हो रही है। एंड थर्ड थिंग, एंगल जो मैंने आपको पहले बताया था 90 डिग्री के है, तो वो भी स्क्वायर में जस्टिफाई हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Adjacent sides of quadrilateral have a common vertex. This statement is also true. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू कि एडजेसेंट साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल, एडजेसेंट भी साथ वाली, तो इनकी ये कॉमन वर्टेक्स शेयर करेंगी, तो यस दिस इज ट्रू। डायगोनल स्क्वायर्स की अनइक्वल होती है, दिस इज फॉल्स, इक्वल होती है। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, यस, बिकॉज ट्राइंगल इज ऑल्सो अ क्लोज्ड फिगर एंड मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो स्ट्रेट लाइन की क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन्स बोला जाता है, ट्रू। All quadrilaterals are rectangle, this one is false, because quadrilateral can be rectangle, it can be square, it can be trapezium, it can be any shape of four-sided closed figure. Okay. Hexagon has six sides, so this one is also. Now coming to the critical thinking question. तो इस फिगर में कितने स्क्वायर्स है, देखिए आप टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करिए, 1 2 3 4, ओके, मीन्स द स्लीपिंग स्क्वायर्स, हॉरिजॉन्टल वन, एंड नाउ द वर्टिकल वन, 1 2 3 4। तो आप इसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 4 × 4 के स्क्वायर्स बनेंगे, 3 × 3 के बनेंगे, 2 × 2 के भी स्क्वायर्स बनेंगे, एंड 1 × 1 वाले भी स्क्वायर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 16 + 9 + 4 + 1, ओके, 9 and 1 10, 10 and 16 26, 26 and 4, 26 and 4 is 30, so total number of squares are 30.